When they got home, Miss Lucy was very excited. The tree was in place, and Miss Lucy put the same old angel on the top of the tree they had used when she was a child. By 9 o'clock, there the tree stood, covered with gorgeous bright balls and silver icicles, and strung with lights with candy canes on the lower branches for the baby. Miss Lucy was so tired. She was no sooner in bed than asleep, and she slept so soundly that Mitzi had to wake her up in the morning. "The young gentleman is here," Mitzi explained. Miss Lucy got downstairs in a hurry. Chester was standing in the parlor, staring at the tree with excited eyes. "I knew you would have the best tree," he said. Miss Lucy glowed with pride. "Would you like to have breakfast with me?" she said. Chester said politely, "I will be glad to keep you company." But before they had finished, there was a policeman with a summons. Miss Lucy had to appear in the police court at 10 o'clock. "Have you been arrested?" Chester asked, with eager interest. "Yes," said Miss Lucy. "Arthur and I got a ticket for parking too long on Front Street, but I will be home before you get here with the baby." Miss Lucy dropped off Chester at his home and headed to the court. The court was crowded. They had to wait. The judge was scolding and fining everyone. "Miss Lucy Quinn," said the judge, "parking on Front Street for 45 minutes. You are the last person I expected to see in this court, Miss Lucy." "Yes, Your Honor. I will pay my fine." $7, said the judge, "and I want to speak to you in the chambers." Miss Lucy paid her fine and went into the judge's little room. When the door closed, he shook hands with her, his eyes twinkling. "So you have a Christmas tree, Miss Lucy," he said. "My wife and I were speaking about you the other day. We haven't seen you in years." "Why don't you come to call on me and see my tree?" said Miss Lucy Quinn. "We'll be glad to do it," Judge Hennessy answered. "My father didn't like you, I know," said Miss Lucy. "But then, he had the prejudices of his day and age. This is a fine new world we are living in, Thomas. Tell me, is Deborah as pretty as she used to be?" "She's a handsome woman yet," said Judge Hennessy, "and she has always admired you. We will come to see you, Miss Lucy." At home, Miss Lucy went up to her room and got the gifts she had purchased for Mitzi and Arthur and put them under the tree. Chester arrived with the baby. She had red cheeks and bright blue eyes and silky, soft, fair hair. Miss Lucy lifted her and sat in the parlor with the baby in her lap. But the baby went straight for the tree, grabbed one of the candy canes, and stuffed it in her mouth. Finally, Arthur took Marie and Chester home in the car. Miss Lucy toiled upstairs to her nap. When she came downstairs again, she saw the evening paper lying near the fireplace. She opened the paper, and there on the first page was a picture of Miss Lucy and Judge Hennessy. "Society leader at traffic court," it read. The article told a great deal about her family, about her position as the titular head of the local society, and went on about how simple everything would be if people stepped up and paid their fines instead of using their influence. Just then, there was a call from Mr. Henderson, the family lawyer. He said that Miss Lucy should have called him. She didn't have to appear in court. "It was no trouble at all," said Miss Lucy. She asked after Mr. Henderson and his wife's health. She also agreed to go to the Hendersons to dinner the following Tuesday. मेहनत से वीडियो बनाती हूँ।
आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। चलिए फिर से एक नई स्टोरी के साथ, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। बहुत सारे पर्सन हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो क्या क्या कर जाते, ये इस स्टोरी में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही रिच लेडी है जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम करने वाली जो है ये मिस लूसी है। और इन्होंने क्रिसमस के लिए ट्री बना के रखा है, बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं मिस लूसी ने पूरा दिन भर इसको डेकोरेट करने में लगा दिया है। इतने इतने नौकर होते हुए भी ये सब काम इन्होंने खुद ही किया है। और वो बोलती है कि जब मैं खुद ही बच्ची थी वो टाइम पे मुझे ऐसे ही ये सेलिब्रेट करने के लिए ये ट्री मिलता था और उसके नीचे हमेशा प्राइजेस रहते थे, अवार्ड्स रहते थे, गिफ्ट्स रहते थे, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैंने भी सेम वही किया है। छोटे बच्चों के लिए नीचे गिफ्ट्स रखे हैं, बीच में थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, सिल्वर और गोल्डन कलर की जो लेसेस होती है वो सब यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, और छोटे छोटे बल्ब्स है वो जो है, ये सारा का सारा क्रिसमस ट्री का अट्रैक्शन यहाँ पे है। मिस लूसी जो है ये बहुत थक गई है, इतना थक गई है कि जैसे ही वो बेड पे जाएगी वो तुरंत सोने वाली है। और वैसे ही हुआ, जैसे ही वो बेड पे गई तो नींद आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वो बहुत अच्छे से गहरी नींद में सो गई। इतनी गहरी नींद में सो गई कि मिर्जी को सुबह आके उनको उठाना पड़ा कि आपके लिए नीचे एक लड़का आया है और आपका वेट कर रहा है करके। तो उसके बारे में जैसे ही मिर्जे ने बताया, वैसे ही मिस लूसी जो है वो तुरंत अपने रूम से नीचे आ गई। और उसने देखा कि चेस्टर जो है, ये चेस्टर पार्लर में मतलब जो हॉल है वहाँ पे ट्री को बहुत ही प्यार से देख रहा था। और उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही एक्साइटेड थी, और वो मन ही मन में बोल रहा था कि मुझे पता है ये सबसे बेस्ट ट्री है यहाँ का। और मिस लूसी ने ये सुन लिया है तो वो भी बहुत गर्व से अपने आप को महसूस करती है और बोलती है कि छोटे राजकुमार, आप मेरे साथ नाश्ता करोगे क्या? तब वो बोलता है कि श्योरली, मुझे तो आपके साथ आपकी कंपनी मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। वो भी उतने ही पोलाइटली उनके साथ चेस्टर जो है वो उनसे बात कर रहा है। मिस लूसी जो है ये इतनी बात फिनिश करेगी और ब्रेकफास्ट के लिए जाएगी, उसके पहले ही पुलिसमैन वहाँ पे सामान लेके आता है और बोलता है कि आपको 10 बजे को, मतलब 10 बजे को आपको कोर्ट में बुलाया गया है और आपको आना ही पड़ेगा करके ऐसे बोल दिया उसने। और वो समझ दे के चला गया। यहाँ पे चेस्टर जो है इसको बहुत ही इंटरेस्ट है ना, तो वो बोलता है कि क्या ये पुलिस आपको अरेस्ट करने आया था? तो मिस लूसी बोलती है हाँ, ऐसे ही समझ लो, गलती की है तो सज़ा तो होगी। तुम्हें पता है जो लॉन्ग फ्रंट स्ट्रीट है वहाँ पे हम लोग गए थे, मैं और आर्थर, और वहाँ पे पार्किंग की प्लेस पे मैंने नहीं थी, फिर भी मैंने प्लेस पे मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी थी। तो अब तुम आर्थर, ये बच्चे आने के पहले मैं जल्दी ही आ जाती हूँ, तो तब तक तुम यहाँ पे रहो, ऐसे बोल के वो उसे ड्रॉप कर देते हैं और वो खुद कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में बहुत ही भीड़ लगी है, इतनी बड़ी सोसाइटी की जो लीडर है वो खुद यहाँ पे कोर्ट में आए, तो उनको देखने के लिए क्या जज बोलेगा ये सुनने के लिए लोग आए हैं। तो जज ने हमेशा की तरह उन्हें डांट दिया कि ये इतने बड़े लीडर के लिए ये शोभा नहीं देता है। मिस लूसी, जो फ्रंट स्ट्रीट है वहाँ पे 45 मिनट के लिए आपकी कार जो है ये पार्किंग करके रखी थी, ये बहुत गलत है। और आप दुनिया के लास्ट पर्सन होंगे जिसके लिए मैं आज आप लोगों को पनिश करने वाला हूँ, उसके बाद में कोई शायद से नहीं करेगा, ऐसे वो बोलते हैं। और उन्हें वो फ़ाइन दे देते थे। तो यहाँ पे मिस लूसी बोलती है कि अगर मैंने गलती की है तो मैं सज़ा तो पाऊँगी और जो भी आप बोलेंगे वो मैं करूँगी। तो जज बोलते हैं कि $7 आपको देना पड़ेगा, यही आपका फ़ाइन है। और उसके बाद में मुझे आपसे बात करनी है तो आपको वो चेम्बर जो है वहाँ पे बात करने के लिए आना पड़ेगा। मिस लूसी जो है ये $7 दे देती है और बाद में जज की जो लिटिल रूम उसे जिसे चेम्बर बोला जाता है वहाँ पे वो चली जाती है। जैसे डोर बंद हो जाता है तुरंत ही जो जज है वो अपने हाथ से उन्हें सेकंड करते हैं। उनके आँखों में बहुत ही इज्जत रहती है मिस लूसी के लिए। वो बोलते हैं कि तो तुमने क्रिसमस ट्री बनाया ही होगा मिस लूसी।
लूसी जो है वो बोलती है कि हाँ, हमेशा की तरह मैं ही बनाती हूँ। हालाँकि ठीक है, आपकी वाइफ़ और आपके बच्चे, आप कैसे हैं? आप नहीं आओगे हमारे घर में? ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते ही जज बोलते हैं कि मैंने बहुत सालों से आपको नहीं देखा था, मिला भी नहीं था, हाँ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मिस लूसी बोलती है, अच्छा ठीक है, मेरे घर में ट्री है क्रिसमस ट्री, आप आएंगे आपके फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि जज उन्हें बोलते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर और आपके घर में आने के लिए बहुत हैप्पीनेस फील होगा। तो मिस लूसी बोलती, मुझे पता है कि मेरे पिताजी आपको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। दुनिया बदल रही है, लेकिन हमें उनकी एज को देखते हुए जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं हैं उसे दूर ही रखना मैं पसंद करती हूँ। लेकिन अब ऐसे है कि दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, उनके नज़रिए बदल रहे हैं। तो थॉमस, तुम सुन रहे हो ना सच में? तो मुझे एक बताओ कि ये जो दोबारा है वो अभी भी उतनी ही सुंदर दिखती है जैसे पहले हुआ करती थी? जज हैन साहिब जो है ये बोलते हैं कि हाँ, वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत है और हमेशा उसकी बातों में तुम्हारा जिक्र हमेशा रहता है, वो हमेशा तुम्हें एडमायर करती है। हाँ, हमें बहुत साल हो गए तुम्हें मिलके, हमें बहुत साल हो गए तुम्हें ना देखे हुए। वो घर आती है, जब वो मिस लूसी जब घर आ रहे हैं तब वो बहुत सारे गिफ्ट्स बच्चों के लिए लेके आने के लिए भूली नहीं है। मिर्जी के लिए, अर्थुर के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट लाए। क्रिसमस पास में ही आ रहा है, अब क्रिसमस ट्री अगर बना है तो क्रिसमस पास ही आ रहा है, इतना तो समझ लीजिए। उन्होंने उस ट्री के पास ही रख दिया। चेस्टर जो है ये बेबी के साथ आ गया है। बेबी जो है ना, स्मॉल बेबी, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसकी चीक रेड है और ब्राइट ब्लू आईज है, सिल्की सॉफ्ट स्किन है उसके हेयर जो है ना ये बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है। मिस लूसी उसे एक बार अपने गले से लगा ले लेती है और फिर अपने जैसे वो उसे ले लेती है ना तो बेबी जो है ना ये नीचे उतरने के लिए तड़प सा उठता है। तो वो बहुत ही, उसे ना वो ट्री देख के उसे बहुत मज़ा आता है। तो वो उनके हाथ से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद ट्री के पास में जाता है। वहाँ पे उसको सिल्वर लाइन्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे अर्थुर जो है ये अर्थुर मैरी को और चेस्टर को लेके घर की तरफ फिर से कार में चले जाते हैं फाइनली। जब मिस लूसी जो है ये अपने प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो वो ये ऊपर जाने के लिए, सोने के लिए निकलते हैं। फिर बाद में जैसे ही उनका सोना ख़त्म हो जाता है वैसे नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद उन्हें इवनिंग का पेपर मिल जाता है फायर प्लेस के पास, वो खोलते हैं। तो जब वो न्यूज़पेपर ओपन करके देखते हैं तो आपको और मुझे सबको हैरानी होगी कि पहली न्यूज़ जो है ये यही होगी कि सोसाइटी लीडर जो है वो ट्रैफिक कोर्ट में चली गई थी और उन्होंने वहाँ पे फ़ाइन दे दिया। वहाँ पे इस न्यूज़ पे यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ पे उन्होंने उनकी सराहना की है इनकी ये चीज़ को कि पॉलिटिकल लीडर होते हुए भी, एक सोसाइटी की इतनी बड़ा हुद्दा होते हुए भी इन्होंने ट्रैफिक कोर्ट का जो नियम तोड़ दिया है उसके लिए कोई भी आर्ग्यू नहीं किया और वो खुद ही कोर्ट में खुद चली गई बिना लॉयर की हेल्प से। और वहाँ पे लीगली जो भी कुछ फाइन होता है वो भी उन्होंने बिना झिझक के दे दिया। आप सब समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी छोटा आदमी भी कोर्ट जाने से इतना डरता है और बड़ा पॉलिटिकल जो रहता है वो तो कितनी भी गलतियां करे वो मानता ही नहीं कि उसके हाथ से गलती हो सकती है। वो लीडर्स को भेजेगा, अपने लॉयर्स को भेजेगा, वो खुद नहीं जाएगा। अगर उन्होंने खून भी किया है तो वो मानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहली लीडर होगी कि इसने तुरंत खुद ही मान लिया है और वो खुद जाके वहाँ पे तो उनका जो वकील है हेंडरसन, उसको जैसे ही पता चल जाता है तो वो फैमिली लॉयर है, वो तुरंत इन्हें कॉल करता है और बोलता है कि मिस लूसी आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप अगर मुझे फ़ोन कर देते थे तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप कोर्ट में क्यों गए। रियल में आप बहुत महान हैं। आपके जैसे लीडर भविष्य में अगर ये सबको मिल जाए, सभी कंट्रीज़ को मिल जाए तो बात ही क्या थी। तो वो बोलते हैं कि इसमें कोई ट्रबल की बात नहीं है भाई, मैं तो सोसाइटी की लीडर हूँ, मैं सोसाइटी की सेवा करने के लिए ही बैठी हूँ। आपकी और आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है वो ध्यान रखिए और हो सके तो डिनर के लिए आ जाइएगा। तो हेंडरसन बोलते हैं कि
हाँ, मैं ही खुद नहीं, आप मेरे घर में आ जाइए तो ट्यूसडे के दिन वो उनके घर में डिनर के लिए चली जाती है। आप भी एक काम कीजिएगा, आप डिनर के लिए मत आइए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सारे वीडियो देखिए। बहुत हार्ड वर्क किया है तो मेहनत का फल भी दे दीजिए भाई। धन्यवाद।